Welcome to all our distinguished guests, our inspiring women, educators, entrepreneurs, thought leaders. On behalf of Griffin Publication and the Global Eye, I salute you all and I wish you all a very happy International Women's Day. सबसे Thank you. पहले आज का Thank you. दिन जो है बहुत बहुत खास है एंड आप सबको इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, एक्चुअली इट्स I can say it's an acknowledgement. So today is not just a celebration of your journey, your struggles, and your vision, but it is an acknowledgement. The acknowledgement of your strength, acknowledgement of your courage and vision, and whatever you are doing to serve, to empower women, to empower the society. So आज हम सब यहाँ एक बहुत ही precious moment के लिए gather हुए हैं. A moment where we celebrate the journeys of extraordinary women. And through this book, we are celebrating your journey, celebrating inspiring women, shaping today and tomorrow 2026 edition. So आज जो कहानियां इस किताब में लिखी गई है वो सिर्फ सफलता या सक्सेस की कहानियां नहीं है, ये हिम्मत की कहानियां हैं, संघर्ष की कहानियां हैं और सपनों को सच करने की कहानियां हैं. Today, through this book, your journeys will not just reach a room or a city or a nation, they will reach the world. पूरी दुनिया में जब लोग आपकी कहानियां पढ़ेंगे, आपके सफर को समझेंगे, तब शायद किसी एक वुमन को, एक औरत को, किसी एक लड़की को, किसी एक सपना देखने वाली को हिम्मत मिलेगी. यही हमारा मोटो है. और जैसे हम कहते हैं, बूंद बूंद से सागर बनता है. अगर हर कहानी से एक औरत को भी प्रेरणा मिले, अगर हर सफर से किसी एक सपने को जगाया जा सके, तो शायद हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां विमेन एम्पावरमेंट सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक सच्चाई बन जाएगी. सो टुडे व्हेन वी स्पीक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, it becomes just a word, just a term sometimes. So let's make it real. And the women featured in this book are truly, truly, truly remarkable. They are educators shaping minds. They are entrepreneurs, thought leaders. They are creating opportunities. They are inspiring change and visionaries building a better future, not for themselves, but for the society. They are serving the society, they are uplifting others, and they empower women in their own unique ways. And today we celebrate them because stories like these deserve to be heard. Journeys like these deserve to be honored. So today, with immense pride and gratitude, we welcome all the incredible women who are part of this beautiful initiative. Your journeys inspire us, your courage motivates us, and your presence makes this celebration truly meaningful. Welcome once again to the special celebration of inspiring women shaping today and tomorrow 2026 edition. किसी एक स्पेशल या प्रेशियस मोमेंट को सेलिब्रेट करने से पहले we all must take the name of Almighty. So we have with us Jigyasa Das, student of class 10th JP Public School. So we welcome her so that she can, initiate the program with her lovely voice. Yes, Jigyasa. माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, पूर्ण इस अज्ञान उधदि से, पूर्ण इस अज्ञान उधदि से, वीणा वादिनी तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती शारदे, सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन, जिन चरणों को सेवते, सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन, जिन चरणों को सेवते,
हम बालक अज्ञानी माता, इन चरणों का प्यार दे। वीणा वादिनी तार दे, तार दे, तार दे। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती शारदे। धन्यवाद। Thank you so much, Jigyasa, for making this celebration so auspicious. God bless you. Now it's time to announce the name of Globalize 2026 Inspiring Women of the World. And they are Shweta Mahendra, Shabana Safdari, Vimal Bafna, Athila Kothalawala, Lekha Boda, Minku Bhattar, Deepika Tiwari, Vidya Ragotra, Manjula Asthana Mahanti, Dr. Archana Singh, and Ruhi Vargava. A good applause for all these inspiring women, because there were so many profiles, and I would not lie, we could only check 33 profiles, and out of those we could select only 11 because we had less times and only few stories actually could be shared with the world. Welcome again on behalf of the Global Eye and Griffin publication. We have with us Shweta Mahendra ma'am. Yes, we will know more about her when we read the book. The book is under print and it will be available in 2 days. Shweta ma'am, can we see you? Yes, you can see it. Yes. See, most of you, I have read about you and you are incredible. So, ma'am, I have been watching you regularly. You know, you have a very hectic work schedule. You are working under, Geo Reliance. You are into writing. You are a travel blogger. You know, you travel a lot. And you also take personal sessions. You are a fitness freak also. So, how do you manage, first of all, how are you feeling today for being recognized as Globalized 2026, Inspiring Women of the Year? And how do you manage so many things with your busy schedule? Yeah, first, thank you, Mosmi, and thank you, Griffin Publication, for recognizing me for this honor. And this honor is not just for me, this is for everyone similar to me, actually. And I'm not feeling like I'm someone different. I see, more women in my daily life, which I encountered. And their stories are more inspiring than me. I always feel that. And yeah, thank you so much. And I'm totally in a mess today. My car broke down just now, and so many problems. And I have to rush to a marriage reception of my boss son. So I have to rush. Sorry, I have to live in between. But yes, like how I do all these things is not everybody has 24 hours in a day, not more than that, right? It is only the focus and the priority. I miss so many things. It's not like that I'm getting everything. I miss socializing. I don't have time to go for coffee with anyone, to my friend, to chit chat. So, I miss something with other women, really relish. And sometimes I feel jealous from them that because I have to do this, I have to choose between five things, three things I have to do. You cannot do everything, you have to prioritize. And I also miss the things. I'm not a perfect person. I also got lazy at some times, but yeah, I keep my goal yearly basis. This year I have to do something different. This year I have to do something different. That is the way it is. But Ma'am, it's, yeah. it's a beautiful journey. We know about you and people will know about you while reading. But today, with your words, how would you empower women? What would you say to the present generation, the girls or the women, so that they can uplift themselves? Yeah, see, I will just tell the girls that make your own dreams, you know, don't live for others' dreams, right? You have to decide what is your dream, what you like. Half of the time we do the things because other like it. But first prioritize like what you like, do those things.
Right. I always prioritize my dreams. I say my dreams are equally important than others. Obviously, sometimes I also compromise. When my son's case come, I just become different. I surrender. I am a submission mode when my son's case come. Otherwise, rest I put the boundary. So you have to prioritize. You have to give importance to yourself and have a faith. Have a faith. Nobody is coming to pat your back. You did very good. You did very good. You have to pat your back yourself. Yes, yes, I will do better tomorrow. I will do better tomorrow. And once you are doing this thing, the world will come after you. You know. Right. Right. So the Thank world will come after you, but you don't wait that somebody is going to push you. Somebody is going to, say you are doing very good. Whatever you do, they will always criticize you. Yeah, it could be better. So what you did it, others also do it. Those kind of remarks, I always, I take it very lightly. I never got offended. I see the world is like that. What I can expect from the world. So you have to keep motivating yourself. You know, I can't motivate anyone. You have to motivate yourself. See that power inside you rather than looking at other women and all. Because this world is same for all. It is not a favorable world, man or woman both, you. right? So you have to struggle, and life is like that. Thank you so much, ma'am. Heartiest congratulations. Thank you. And we will soon see the book. And today we have with us Shabana Safdari. Shabana, ma'am, you inspire me personally because I have lost so many. I have known so many, battling life. They are warriors. I have worked with an ISRO scientist, who was a warrior. But today, when we see the world, do we find someone actually motivating the warriors battling various battles? All right. And who are the healers? Do we really find healers who can pat on your back and say, yes, koi baat nahi, keep fighting, you will win? Shabana, ma'am, are you here? Yes, very well. Thank you, first of all, Griffin and Global Eye. And I really appreciate Mosmi and Kirat for taking all the efforts to get me into this few women who are inspiring the society and the world. And honestly speaking, I had never expected it. I will be the one chosen in these 15, 10 to 12, 11 women. I just thought that I have a story and I want that story to reach n number of women in the world. So that even if one person get inspired by my story, I have done my work. And that was my only reason to approach. And, when I discuss with you that this is my story, and it so happened that you are also working with a lot of women with the cancer warriors and all. So it really clicked well. So yes, a big thank you for having me in this inspiring women. And my main purpose is that yoga helped me to transform my life from anxiety and fear of dying of cancer without even having cancer. And so when there is faith, when there is hope, everything can change. And that's what happened for me through yoga. I found my purpose in life. I overcame my anxiety of fear of cancer, and today, in this past 10 years, I am on that path of helping people believe that healing is possible through holistic approaches, and that's what I do to inspire people and build that hope and faith in them. Thank you so much, ma'am. What would you say to the women today so that they feel that they are important and your words may empower them? Maybe a few words. I very strongly believe that you cannot pour from an empty cup. So, first, you should prioritize your own well being, your own happiness, because that is what matters the most. Then comes everybody else, whether it's your children, your family, your friends, whomsoever. So, first, your priority should always be yourself, and it's not that you are selfish or you don't have to feel guilty about it. Choose your dreams, your well being, your self care, your work. That is all your priority. And then comes everyone else. Because if you are not happy, if you are not well, how can you take care of the rest of the people who are around you? Perfect, perfect. Thank you so much and heartiest congratulations once again. हमारे Thank you बीच so much. है विमल बाफना मैम,
उनके एक्सपीरियंसेस, उनके सर्विसेज अगर मैं बोलने लग गई तो शायद किताब बन जाएगी, एंड किताब शायद बनी भी हुई है उनके ऊपर। विमल विमल मैम आप हैं हमारे बीच में, जरूर। आपको देख सकते हैं। उन्होंने सभी तो को सोसाइटी के लिए इतना कुछ किया है, वुमेन के लिए किया है, एनिमल्स के लिए किया है। उनका लिस्ट एक्चुअली नेवर एंडिंग है। पीपल शुड रीड हर बुक, रीड हर स्टोरी एक्चुअली। मैम इतना कुछ, बीइंग अ होम मेकर, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और सडनली अपने सोसाइटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने अपने शोल्डर पे ले लिया, और अभी तक आप सर्विस देती आ रही है, राइट फ्रॉम हेल्थ सेक्टर से लेके आप चाहे बच्चों को या गर्ल चिल्ड्रन से लेके एनिमल से लेके, ऐसा क्या था, किसने, कैसे आप इंस्पायर हुए सोसाइटी को सर्व करने के लिए? सभी के लिए वुमेन्स डे की पहले शुभकामना सभी को। आज मेरे साथ जितनी भी आज सभी को पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आज आपने सभी को चुना है, और आज इसमें, आज इस बुक के अंदर सभी को आपने कैद कर लिया है एक अच्छे तरीके से, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी स्टोरी मेरे बचपन से ही है। मतलब मेरी फैमिली ही ऐसी है कि जो सेवा में है, जिन्होंने फुल फैमिली मेरी सेवा ही करती आई है, और फिर वो मुझे बाल घुट्टी जो बोलते हैं वैसी मिली है। तो मुझे बचपन से वही है, मेरा पूरा ससुराल भी वैसा ही है। तो मुझे ये सारी चीजें करने में बहुत आसान गया है। मुझे सेवा का जो मौका मिला इसके लिए मैं गॉड को थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी सोसाइटी के लिए करते करते सभी जितने आज बच्चे एजुकेशन के लिए भी आते हैं, उनके लिए भी, जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है उनके लिए भी, और एनिमल्स के लिए भी, और मैं खुद नेचुरोपैथिस्ट मतलब का काम सेवा बोलकर करती हूँ ना, कभी उसके साथ गॉड गिफ्ट है मुझे ये कि मैं वो सेवा करती हूँ, करना भी चाहती हूँ। पर मुझे सोसाइटी ने बहुत ज्यादा चांस दिया आगे आने के लिए, मुझे बहुत काम करने का मौका मिला समय समय पर। मैं नेशनल प्रेसिडेंट जैन कॉन्फ्रेंस की, जैन वुमेन्स विंग की नेशनल प्रेसिडेंट रहने से मुझे पूरा देश के साथ काम करने का, सेवा करने का मौका मिला। पहली बात, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब जब और मैं जैन कम्युनिटी से हूँ, तो आप सब जानते हैं जैन कम्युनिटी स्पेशली सेवा के लिए बहुत अग्रणी है। तो मुझे वो बहुत सारे मौके मिले कि मुझे ये सेवा करनी है, यहाँ करना है, और फिर अंदर से भी वो एक आवाज निकलती है कि मुझे ये काम जरूरी है, मेरे देश के लिए ये जरूरी है, मेरे मतलब आजू बाजू रहने वालों के लिए उतना ही जरूरी है। वो काम मुझे करने का मौका भी मिला, और मेरे परिवार ने, मेरे बाकी लोगों ने, और मेरे जात जो मेरी साथ लेडीज है उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प की। मेरा बहुत बड़ा ग्रुप है, मेरे पास 75,000 मेंबर्स है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। तो मुझे काम करने में बहुत मजा आती है, और मैं पूरा दिन भर वही एक ही सोचती हूँ कि मैं आगे का प्रोग्राम कौन सा करूँ, या मेरे लिए ही नहीं, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे हमारे नई आने वाली पीढ़ी के लिए, या फिर जो बीमार है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। आज आप वुमेन को, आज वुमेन इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, आज आप क्या बोलना चाहेंगे कुछ शब्दों में, ताकि जो वुमेन है, जो औरतें हैं, वो आगे बढ़े, और आप जो सेवा कर रहे हैं वो भी सेवा में कहीं ना कहीं उतर सके, अपने सपनों को पूरा कर सकते। आज आप क्या कहोगे उनको? मैं यही कहना चाहूंगी कि जितने आपका मौका मिला है, सचमुच हमें, हमारे में तो एक कहावत ही है कि जब हमें मनुष्य, मतलब एक हम इस भाव में इस तरीके से आए हैं, तो हमें सेवा करनी ही चाहिए। तो मैं ये कहूंगी कि किसी से अपेक्षा बिना करे अगर तुम सेवा करते हो, तो तुम्हारे लिए बहुत फेथफुल है, बहुत सारी, मतलब आप लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमें सेवा का मौका अगर मिलता है तो हमने जरूर लेना चाहिए, और जितनी ज्यादा सेवा करो उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट मिलने वाले हैं। आज आपको कैसा लग रहा है मैम? आपने बहुत बहुत अच्छा लग रहा अवार्ड जीते हैं, बहुत अवार्ड, आपके अनगिनत आपके ऑनर्स है, अवार्ड्स है, लेकिन आज ग्लोबल आई ने इतने सारे प्रोफाइल में से आपको चुना है 2026 इंस्पायरिंग पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड। आज आपको ऐसा क्या एहसास हो रहा है? क्योंकि इट्स नॉट बिकॉज आप फीचर हुए हो, लेकिन आपकी जो स्टोरी है वो शायद दुनिया में कहीं ना कहीं कितने औरतों को एक नया सपना दे सकते हैं। जरूर जरूर दे सकती है। आज हम लोगों ने आज कार रैली निकाली
फॉर कैंसर, नो कैंसर, ये रखकर हमने ये रखकर, और ब्लड डोनेशन कैंप भी बहुत बड़ा लिया है। मतलब मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लिया आज सुबह। और आज जो रैली निकली, कार रैली, 100 कार्स ने पार्टिसिपेट किया था उसमें, और सभी का लोगो और सभी का वो था कि नो कैंसर। तो मैंने कैंसर पर बहुत बड़ा काम किया है, जितने भी हो सके उतने हमने कैंसर के कैंप लिए, ब्लड डोनेशन कैंप लिया अभी अभी में। तो उसके लिए हमें बहुत सारा सेवा का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच मैम। हमारे बीच में बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज है, एक्चुअली उनकी कहानियां पढ़ती हूँ तो मैं खुद इंस्पायर हो जाती हूँ। लेकिन अभी मैंने रूही भार्गवा मैम को बुलाना चाहूंगी, क्योंकि उनका थोड़ा सा फील्ड अलग है। वी हैव मोर इंटरेस्टिंग पीपल विद अस, वी मस्ट नो देम एक्चुअली। बस रूही मैम, रूही भार्गवा जी आप है हमारे बीच में, क्या आपको देख यस, सकते यस। मैम? आपका फील्ड थोड़ा सा अलग है। आपने सोसाइटी को अपना अपना टाइम, अपना सर्विसेज में भी आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके आपने सोचा कि लोगों के लाइफ में उजाला दे। मे बी यू वांट टू ब्राइटन अप देयर लाइफ, एनलाइटन देयर लाइव्स। Many are suffering from so many issues. Many are doubtful about themselves. They do not know what to do next. And many are overthinking about their lives. This is also an issue. How do you see today? First of all, how are you feeling today being recognized as one of the inspiring personalities of women? And congratulations. How have you like why have you chosen this path? And how are you feeling today? Yes, Ruhi ji. First of all, I'm very happy and I'm very, very thankful that I got this opportunity, that I'm being published in the book. And I would say a great thanks to Global Eye. And my journey was like, it was very, very difficult. In 2011, I lost my dad, and so many things happened that I entered into this field. I am actually a Sadhani. We generally don't believe in this tarot and astrology, but all of a sudden now I'm totally into this. I changed my life, like totally. I have changed my life, about my relationship, my kids. Like, I've suffered a lot. When I changed my life by that healing, manifestation, so now I am, I'm connected with 5,000 plus women whom I have inspired by sharing my views, how I was, how I was 108 kgs. Like, my life was totally stressed up and messed up. When I reduced my weight by manifestation, I changed my life. So I inspired so many women who were not able to go out of their house and work out. So this is something which they can, by doing this tarot reading, by doing this manifestation, by doing this healings and all, they can change their life by sitting at home, and they can help other women. And it's a very good platform for women who are not earning, like who are dependent for small small things on other people. So this is a very good platform where they can, sit at home doing their household, and they can, earn, and they can become self dependent. So I have brought so many women out of darkness, and I've brought them into light to earn, to become strong, emotionally strong, by doing, giving them the sessions, healing sessions and all. So it's a very, very good platform. I just wanted every woman, like, who are not able to go out or who have not studied. It's not like that if you are not graduate, even the like girl who is more 16 years can do this course. By doing this, they can start earning, they can become self-dependent, and not only themselves, they can inspire other women how they can change. Because these days, a lot of issues, relationship, marriage, a lot of things are going because everybody's earning, so things are not working in a good direction. So by doing this, I'm helping society to come out of stress, come out of anxiety. I am helping them to drop their medicines by just giving them good sessions. Right. Thank you so much. Few words for women today. How would you uplift women today when many are struggling to come out of their doors? I would say everything is possible. It's not like that nowadays. It's not like that ki women can't do anything. Women are the strongest among all. Like, they are more than a man, and they can do whatever they want. So I want everybody who are not earning or dependent on others, they can also step out, and they can, become something in their life. They can do a lot in their life by sitting at home. They don't even have to step out, and they can do a lot. Right. Thank you so much. Heartiest congratulations. Thank you. हमारे बीच है डॉक्टर अर्चना सिंह। पता नहीं इन्होंने कितने बच्चों को हील किया है, मोटिवेट किया है, कितने रिलेशंस को उन्होंने ठीक किया है, इनफैक्ट कितने बच्चों को काउंसलिंग दिया है।
डॉक्टर अर्चना जी, क्या आपको देख सकते हैं? क्या आप वीडियो ऑन करें? यस जी बिल्कुल। मैम, पहले तो आपको कैसा लग रहा है? बिकॉज बहुत सारे, देर आर सो मेनी वुमेन डूइंग अ लॉट इन द सोसाइटी, लेकिन कुछ ही लोग, बहुत लोगों को हमें पता ही नहीं है कि दे आर एक्चुअली डूइंग अ लॉट। आज जब यू आर रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंस्पायरिंग वुमेन, ग्लोबलाइज्ड इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ 2026, कैसा फील हो रहा है? और आज आप वुमेन, स्पेसिफिकली वुमेन को क्या बोलना चाहेंगी कि वो अपने बंद दरवाजे से बाहर आए और खुद खुद के सपनों को पूरा करें? हाँ जी मैम। बिल्कुल सबसे पहले बहुत सारी बधाइयां हम सबको जो यहाँ पर हैं आज वुमेन्स डे के मौके पर। और आपको धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपने बुक में अब मेरी स्टोरी डालने के लिए आपने चांस दिया। और मैं आज इस खास मौके पर ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे हम इंडियंस जो है, हमारा जो भारतीय समाज है जिसने औरतों को बहुत ज्यादा ही दबाने का प्रयास किया है कई जगहों पर कि औरतें आगे नहीं हो सकती हैं और उनको बार बार पीछे करने का प्रयास होता है। एक तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे एक संदेश देना चाहती हूँ कि शादी का जो सिस्टम है कि एक लड़की अपने लिए डिसीजन नहीं ले सकती है और पेरेंट्स उनके लिए डिसीजन लेते हैं और शादी के पहले और शादी के बाद की जिंदगी उनकी बहुत बदल जाती है। वो एक कश्मकश में रहती हैं, फिर उनका करियर खराब हो जाता है, उनके सपने टूट जाते हैं। लेकिन मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके लिए हो सकती हूँ क्योंकि मैंने इन पूरे संघर्ष को झेला है 10-12 साल। जैसे कि रूही जी ने कहा कि वो 108 kg की थी और उन्होंने अपना वेट लॉस किया है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सेम ऐसे ही मेरे लिए मेरे करियर, आप जहां पर हैं वहां पर ला पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उन संघर्ष को पार करके मैं आ पाई हूँ। तो मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम औरतें अगर एक दूसरे का सपोर्ट करें और इन लड़कियों को जो अभी यंगस्टर्स हैं जो 18 के एज में हैं, 15 के एज में हैं, उनको अगर हम गाइडेंस दें और बताएं कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, कैसा भी माहौल हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी नेगेटिविटी हो आपकी लाइफ में, लेकिन अगर आपका हौसला बुलंद हो और सचमुच आप उस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती है। बस अपने इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं, आगे बढ़ें और आप अपने हर काम को जो करना चाहती हैं कर सकते हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े विदुषी और बहुत सारी मैं देख रही हूँ कि महिलाएं बैठी हैं जो बहुत आगे जा चुकी हैं, काम कर रही हैं। सेम ऐसे ही हम सबको मिलकर अपनी महिला गणों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मैं सेवा करती हूँ, मैं एक गर्ल्स स्कूल में हूँ और मैं उन सारी लड़कियों को बहुत मोटिवेट करती हूँ, आगे जाने का रास्ता सिखाती हूँ। और बहुत सारे बच्चे जो कई सारे ड्रग्स ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं कम उम्र में, अपने बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनकी भी काउंसलिंग करके मैं उन्हें आगे भविष्य की तरफ, अच्छे भविष्य की तरफ ले जाने का प्रयास करती हूँ। यही मेरा काम है मौसमी जी, और मैं इसमें बहुत खुश हूँ और आपने मुझे बुलाया है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू सो मच मैम, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। हमारे बीच है मंजुला अस्थाना महंती मैम। मैं क्या बताऊं, कितने तो किताबें लिख डाली उन्होंने, ट्रांसलेटर भी है। आज भी वो बहुत बिजी थी सवेरे से, लेकिन फिर भी मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कुछ समय निकाल लीजिए, एंड उन्होंने समय निकाला। आज वो हमारे बीच में है। मंजुला मैम, आपसे मुलाकात हुई थी बैंगलोर में, नहीं एक इवेंट में भी हुई थी, एंड आपने इतने सेशंस दिए हैं और एक एडुकेटर रही है। सो आज आपको कैसा फील हो रहा है? आई नो मैम, इंस्पायरिंग वुमेन की अवार्ड्स तो आपको बहुत मिली है, लेकिन आज स्पेसिफिकली कैसा लग रहा है? क्योंकि एक किताब में, जैसे किसी ने कहा, हमारी एक मतलब पर्सनालिटी ने, किताब में बांध दिया है, सो दैट 10 साल, 20 साल, 100 साल बाद भी अगर कोई इंस्पायर पढ़ना चाहे, वो किताब पढ़ के आपके स्टोरी से, आप सबकी स्टोरी से कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। मैम, आज आपको कैसा लग रहा है? मंजुला मैम, आप हैं हमारे बीच में? हाँ जी, मैं बिल्कुल हूँ आज तुम्हारे आपको साथ। कैसा लग रहा है? और आपने पूरी उम्र दे दी है बच्चों को, एंड आपने कई किताबों में विडोज के लिए भी लिखा है, आपने आज तक आप कर ही रही है। तो आप आज वुमेन को क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से आप उनको बोलेंगे कि अपने घर से निकलिए या अपने घर पे ही बैठ के खुद के सपनों को पूरा कीजिए? एंड वुमेन सपोर्टिंग वुमेन, जैसे अर्चना मैम ने अभी कहा है,
एक औरत को अपलिफ्ट करना ये बहुत बड़ी बात है. सो ये हमें एक एग्जांपल सेट करना है. हाउ कैन अ वुमन अपलिफ्ट अ वुमन? यस मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपने साथ साथ बाकी सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी कि तुमने हम लोगों को इस किताब में लिखने योग्य समझा और चुना. तो इसलिए मैं तो एक मिनट. इसलिए मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी. और मेरे विषय में तो तुम पर्सनली भी बहुत कुछ जानती हो और मेरे को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है. आज इस विश्व महिला दिवस के अवसर पर आज हम लोग सब मिले हैं, बात कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं. ये बहुत ही एक अच्छी अनुभूति है और हमारे लिए एक अच्छा मौका है कि हम अपने साथी महिलाओं को और या हमसे छोटी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उन सबको मैं तो ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले अपने आप से प्यार करो. जब हम खुद अपने से प्यार करते हैं, हम अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को और अपने जो भी हम करना चाहते हैं, उन कार्यों को पसंद करते हैं, उन कार्यों को करने से हमें खुशी मिलती है, तो हम उन कार्यों को जरूर करें. और जब हम अपनी पसंद के कार्यों को करते हैं, तो इससे हमारा हम दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर पाते हैं. क्योंकि जब हम स्वयं से प्यार करते हैं, तो हम दूसरों को भी स्वयं से प्यार करना सिखाते हैं. और जब हम खुद अपने आप को प्यार करते हैं, अपने आप के बारे में सोचते हैं, अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो हम सबको वही सिखाते हैं और सब अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, बेहतर कार्य करते हैं और जो करना चाहते हैं वो कर दिखा सकते हैं. केवल कुएं का मेंढक बन के नहीं रहते, बल्कि उनके सामने खुला आसमान होता है और वो जो चाहे कर सकते हैं. जैसे मुझे बचपन से इस बात का पूरा पूरा मौका दिया गया कि मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या करना मुझे पसंद है, क्या मैं करने से खुश होती हूँ, कहाँ जाना मुझे अच्छा लगता है, कैसे लोगों से मिलना मुझे अच्छा लगता है. मुझे पूरी स्वतंत्रता दी गई और मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरी ससुराल में भी मुझे बहुत ही उन्मुक्त वातावरण मिला. इसलिए मैं जो करना चाहती थी, करने के लिए मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला. चाहे मुझे लिखना था, बहुत कुछ पढ़ती थी, बहुत कुछ सोचती समझती थी और उस बात को मैं दूसरों के साथ शेयर करना चाहती थी. इसलिए मैंने लिखना शुरू किया कि मेरी जो मन की बात है वो दूसरों तक जा सके. उसको मैंने लिखना शुरू किया. धीरे धीरे करके वो किताबों की शक्ल में सामने आए. और भी लिख रही हूँ, बहुत कुछ लिखा है. और इसके साथ साथ में जन सेवा करना, बाल कल्याण करना, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रूप में भी, नेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रूप में मैंने भी काम किया है और बहुत काफी काम करने का मुझे मौका मिला. बहुत सारे मेरे सहयोगी मेरे साथ आए और लिखने के द्वारा भी मैं एक समझती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि मैं लोगों को प्रेरित कर सकी कि ये करना चाहिए. प्रकृति के विषय में भी हमारा दायित्व है, समाज के प्रति भी हमारा दायित्व है. हम अपने संस्कारों को न भूलें. इस तरह से हम एक अच्छी नस्ल के बच्चों को तैयार करने के लिए भी समर्थ हो पाते हैं. तो एक शिक्षक के रूप में या एक सामाजिक प्राणी के रूप में या एक गृहिणी के रूप में, सब में अलग अलग तरीके के रोल हैं और उनको अपनी पसंद के अनुसार, अपनी सुविधा और अपनी क्षमता के अनुसार पूरा करते जाना चाहिए. यही मैंने सीखा है और यही मैं पूरा टाइम करती आई हूँ और आगे भी वही करने वाली हूँ. मैं इस समय पशुओं के प्रति प्रेम को भी मेरा बहुत ज्यादा झुकाव है पशुओं की तरफ. यहाँ तक कि मैंने पशुओं से कम्युनिकेशन करना भी सीखा है. पशुओं के साथ बात भी कर सकती हूँ, वो लोग क्या चाहते हैं ये भी मैं अब कर सकती हूँ. और इसी तरह से मैं अपनी गाड़ी आगे चलाना चाहती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कुछ कर सक रही हूँ. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for being here. We have with us Vidya Ragotra. Vidya ji has done so much. Her again inspiring journey can inspire so many people. But rather than I speaking about Vidya ji, I would first of all like to wish
Happy Women's Day, Vidya ji. If you are here, if I can see you, heartiest congratulations. How are you feeling today when the Global Eye has chosen you to be one of the inspiring women of 2026? Vidya ji, can we see you? Why Yes. have you chosen this path? And what would you tell the girls, the women today? Yes, Vidya ji. First of all, thank you so much for honoring me and writing a chapter in your book. I have no words how much I feel honored and happy about it, because when I read the message that you are a silent inspirer and silently you're doing work, it literally brought tears in my eyes, because I've been a very low key person. I've not been really out there displaying what I do. I do what I do, but still I've been low key, and Global Eye recognizing that yes, she's contributing to the world in her own ways by being a Loki. That was a really heartfelt moment for me. My daughters used to keep saying, Mama, Mama, you tell people. And I'm like, God will decide. Let God take its own route. And that's why I'm extremely thankful to you, Mosmi. Today, I just feel honored because this recognition is not about me only. It represents the stories of lots of women that have shown courage to transform their lives. So, honestly speaking, there was a time in my own life when my relationship was on the verge of breaking. Like, today women are studying a lot, they have a good career, and then after marriage, suddenly they feel a hollowness in their heart, emptiness, loneliness, and they go through all the judgments and everything. Sometimes women are able to continue with their career, but statistics say that only 23% women are continuing with their career after marriage, and rest of them are dropping. So, what is happening with all those women is what happened to me as well. I married an army officer, and I couldn't continue with my career. But during that phase, I realized that yes, I was going through lots of emotional turbulence. And sometimes, like everybody's saying, woman should love herself. But the truth is that the emotional ups and downs that women go through during pregnancy, delivery, and postnatal depression and all, uh, a major chunk of her personality starts sabotaging herself. अपना ही सब self destruction mode में चले जाते हैं. So that was a moment where I realized that a breakthrough needs to happen. I need to save my relationship, because I was on the verge of quitting my relationship. And then through that journey of working on myself, studying and trying to work on myself, the Western psychology says quit your marriage and be happy, take care of your mental health. But somewhere my upbringing has some Vedic roots, Bhagavad Gita, Bhagavatam, Ramayana, and all those things. So I think this is a wrong decision if I'll go for really such kind of extreme step. So I worked on myself. I didn't try directly give in to the Western methodologies. And then I really came out as a very empowered person who could have control over her emotions, who could lead her family. And then I realized there are many women who are really giving up on their dreams because of family. And some women are giving up family for their dreams. So there are like extremes happening. So I thought, let me help these women create a good balance among them. So whenever I see a woman working on a relationship and children growing up in a emotional security, then I feel my purpose is fulfilled. I feel society becomes stronger. So, if today my message to all the women would be that never underestimate the power that you are having within you. You're capable of building a successful career, nurturing loving families, and creating a life filled with peace, purpose, and joy. So, when a woman rises in her true strength, what I believe is she not only lifts herself, she lifts her family also, and she lifts her society also. You all are lifting the society, and I've worked since 14 years in the same domain, inventing new methods to save relationships. Even if the relationship is going through infidelity, even if the relationship has reached a divorce state, even if it is going through silent treatment, abuse, or even in-laws interference, I was able to help women to save their relationships. And if the God is merciful, then I'll keep doing the same thing. But all I want to say is, yeah, the main strength is compassion that we women have. This kind of leadership that we women have, a compassionate leadership,
needs to be installed separately into other people. They really struggle to have a compassionate leadership. And we women are blessed with that feelings inside our heart. So instead of making them our negative point or making them our weakness, we can use it as a tool. We can use it as a strength to strengthen our family, our society, and future of the country. That's all. Thank you so much. Thank you so much. Heartiest congratulations. So many more, to come to serve the society. We have with us Lekha Bora. लेखा जी, क्या मैं आपको देख सकती हूँ? आप हैं हमारे बीच में आज। हम लोग हीलिंग के बारे में बात करते हैं और हम सोचते हैं कि जब हम व्हेन वी विश विमेंस डे और हम जब सक्सेस के बारे में बात करते हैं, वी थिंक दैट somebody who is at the height of the career, या हमारे पास ऐसे प्रोफाइल आए थे जिसने हमें बोला भी था, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना कमा लेती हूँ। मेरा पर्पस एक ही था, here this book is not looking for women or personalities earning huge. We are looking for stories that can inspire the society, inspire women. अगर आप होम मेकर भी हो, अगर आपने अपने बच्चों को किस तरीके से बड़ा किया है, एंड अगर आप एक हीलर हो या आपने कुछ एक फील्ड चूज किया है, स्ट्रगल किया है, चूज किया है और आप सोसाइटी को आप दे रहे हो, दैट इज इंस्पायरिंग टू मी। लेखा जी हमारे बीच में है and she has started a wonderful journey serving the society, because today we know that हर women को कहीं ना कहीं problems है। A woman undergoes many problems right from puberty to maternity, तो बच्चा पैदा करने के बाद फिर hormonal changes, again we have menopause, कितने कुछ in this process। जैसे आज हमारे बीच में रूही जी, उन्होंने कहा था मैंने 108 kg गेन कर लिया था। सिमिलरली वी कीप ऑन डूइंग ऑल दिस, लेकिन क्या हमारे पास वक्त है खुद के लिए कि हम खुद को सुधारें या खुद को फिट बनाएं? क्योंकि हम जब हेल्दी खुद नहीं रहेंगे फिर हम दूसरों को क्या ज्ञान दे सकते हैं। सो लेखा जी प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। हम जानना चाहे, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। क्या आपको देख सकते हैं लेखा जी? हाँ जी, हाँ जी, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस लेखा बोरा जी। हाउ आर यू फीलिंग? आज कैसा लग रहा है? बिकॉज अगेन मेरा मोटो ये है, ऐसा नहीं जो पॉपुलर है, जो अपना पीआर मार्केटिंग करते रहते हैं, लोग उनको जानते हैं, लेकिन वी हैव विमेन इन द सोसाइटी। मैं आपको और ऐसे लोगों से आज इंट्रोड्यूस कराऊंगी, वो छुपे हुए हैं, आई विल पुल देम आउट नाउ। उन्होंने इतना कुछ किया है, देयर जर्नी इज इंस्पायरिंग मी एंड विल इंस्पायर एंटायर वुमेन फ्रैटर्निटी। आप लोग कर रहे हो, यू आर सर्विंग द सोसाइटी silently, you are not looking for any name, fame, applause, all right, acknowledgement, nothing. लेकिन आज जब हमने आपको ढूंढ निकाला है, आज आपको कैसा फील हो रहा है for being the 2026 globalized inspiring woman of the women? and आज आप क्या बोलना चाहेंगे women को, so that वो दरवाजे के बाहर निकले? धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। आप सभी को सबसे पहले विमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे अपनी बुक में आने का मौका दिया है। मेरी जर्नी शुरू हुई है, मैं योगा जब इंस्ट्रक्टर हूँ, मैंने योगा जर्नी अपनी हेल्थ से शुरू करी। मेरी हेल्थ इश्यूज थे, मुझे यूट्रस में मल्टीपल सिस्ट हो गई, उससे मेरे दो बच्चे हैं, तो दोनों के दो सिजेरियन हुए। तो मैं हॉस्पिटल से इतना घबरा गई थी कि मैं जाना ही नहीं चाहती। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेट करने को बोल दिया था, तो लेकिन मैंने बिल्कुल हिम्मत नहीं थी डॉक्टर के पास जाने की। तो मैंने खुद से ये सोचा कि योगा करूं। तो उससे मैंने एक बार टीवी पे स्वामी रामदेव को देखा था, पतंजलि का, कि आस्था चैनल आता था, उसमें योगा करा रहे थे, तो मैंने उनको ज्वाइन किया। सुबह 5 बजे उठ जाती थी, कुछ दिन उनके साथ किया, तो मुझे अच्छा लगने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। तो धीरे 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 मैंने क्लासेस ज्वाइन कर ली योगा की। तो जब मैंने क्लास ज्वाइन करी तो मुझे फायदा होने लगा। तो मुझसे मेरे रिलेटिव्स, मेरे फैमिली में उन लोगों ने बोला कि क्यों ना तू इसका डिप्लोमा ले ले या कोर्स कर ले, योगा का कोई कोर्स कर ले। लेकिन शादी के बाद, शादी से पहले जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद बिल्कुल छूट गया था, बच्चे, फैमिली को देखना, तो उसके चक्कर में बहुत साल हो गए थे। लेकिन फिर कॉलेज जाना, फिर एक एज के बाद दोबारा कॉलेज जाना, बहुत घबराहट होती थी, बहुत। एक तो मैं इंट्रोवर्ट, काफी इंट्रोवर्ट थी,
लेकिन कॉलेज फिर भी जबरदस्ती घर से मेरे बच्चों ने, खुद मेरे जब बच्चे बड़े हुए थे मेरी बेटी ने मुझसे बोला कि मम्मा आप ज्वाइन कर लो, कॉलेज ज्वाइन करो। तो मैंने योगा में डिप्लोमा किया। उसके बाद मैंने कर धीरे 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 करते हुए, एक बार जब डॉक्टर ने, मेरी डॉक्टर थी, तो उन्होंने मुझसे बोला कि एक बार तू आई नहीं अभी तक दिखाने, देख अपना तेरे क्या है, इतनी परेशानी होगी तो कैसे रह लेगा। तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, तो मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा जो सिस्ट था वो गायब हो गया था मेरे योगा करते करते। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया उसके बाद मैंने एग्जाम पास किया, तो धीरे धीरे अपनी फैमिली में, अपने अगल बगल के लोगों को धीरे धीरे करवाया। तो उससे लोगों को तो मोटिवेशन मिला, मुझे भी थोड़ा एनर्जी, थोड़ा अच्छा लगने लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती थी बिल्कुल। इतना टाइम हो गया था मुझे ये करते हुए। धीरे धीरे मैंने अपने अगल बगल अपनी सोसाइटी से शुरू किया। और ना मुझे कुछ ये टीवी फोन में वीडियो बनाना, एडिट करना, ये कुछ नहीं आता था। तो मेरी बेटी ने मेरी हेल्प करी धीरे धीरे। उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी खोला। उसके बाद मैंने यूट्यूब के थ्रू थोड़ा अपनी वीडियोस डालना शुरू किया। ये भी नहीं पता होता था कि यूट्यूब में डालने के लिए इसमें मोनेटाइजेशन जरूरी होता है। उसमें हमें सब्सक्राइबर पूरे करने होते हैं, 1 साल में 4,000 वॉच टाइम पूरा करना होता है। ये कुछ पता नहीं था मुझे। तो धीरे धीरे मैंने ऐसे ही शुरू किया अपना। तो आज मैं काफी लोगों को हेल्प कर रही हूँ, मेरे साथ में सोसाइटी को और लोगों को ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ। इससे मुझे खुशी मिलती है। और आज आप पूरे वुमेन सेक्शन को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने खुद के लिए काम किया, खुद को ग्रो, खुद को ठीक किया, रिकवर हुए आप, फिर आप सोसाइटी को आप हाँ, एक हम लोग का क्या रहता है, अंदर से डर रहता है कि कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हिम्मत नहीं होती कुछ करने की। तो इससे मुझे लगता है कि अगर जब योग करते हैं उससे हम लोगों का फिजिकली फिट नहीं रहते हैं, उससे हम मेंटली भी फिट होते हैं। तो ये मैं चाहती हूँ अगर कोई इंसान हर दिन अपने लिए, हर औरत को मैं चाहती हूँ कि 20 से 25 मिनट खुद के लिए भी निकाले। घर को तो देखते देखते उसके साथ हम में इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है कि हम सबको अंदर बाहर सब देख सकते हैं। आज विमेन कितने बाहर, कितने ऊंचे ऊंचे काम कर रही हैं। आप मेरे सामने ही इतने लोग बैठे हैं कि मुझे खुद ऐसा लग रहा है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उन लोगों के सामने, इतना अचीवमेंट किया हुआ है सब लोगों ने। लेकिन जब मैं दूसरों को ठीक होते हुए देखती हूँ अपने थ्रू, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो मैं सोचती हूँ कि विश्वास रखना चाहिए खुद पे, और अपने जो हमारे जो एम है, हमारे जो सपने हैं, उसको पूरा करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने फैमिली को ही देखना है। फैमिली भी देखो, बाहर भी देखो, लेकिन खुद के लिए टाइम थोड़ा निकालना चाहिए और खुद को खुश रखना चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि पूरी लाइफ टाइम ना एक स्टूडेंट बन के रहना चाहिए। राइट। मतलब एक उसको बन के रहेंगे तो हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और दूसरों को सिखा सकते हैं। और मुझे सच में, मुझे ना रात में अभी भी सपने भी बचपन के आते हैं, स्कूल के सपने आते हैं कि मैं स्कूल जा रही हूँ। मतलब मेरे को अभी भी मेरे बच्चे मुझसे खुद बोलते हैं मम्मा आप तो अभी भी ऐसे बोलते हो। मुझे खुद करने का, कुछ ना कुछ करने का, नया सीखने का बहुत शौक है। लेकिन थोड़ा ये होता है, हेजिटेशन होती थी कि लोग भी बोलते थे कि बच्चे तो बड़े हो गए, मतलब अब क्या करना शुरू कर रही है ना, ये अब क्यों कर रही है ये। लेकिन मेरी फैमिली भगवान की दया से बहुत अच्छी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट किया मुझे। वीडियो बनाना चलाना नहीं आता था तो मेरे हस्बैंड मेरा कैमरा फिट करके रखते थे, ऑन ऑफ करना, लाइव में क्लासेस देती हूँ तो ऑन ऑफ वो करते हैं मेरा। तो मतलब ये चीज का सपोर्ट काफी, फैमिली का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं हर आज महिला से ये बोलना चाहती हूँ कि खुद पर विश्वास रखें। डर जरूर लगता है, लेकिन वो डर ना धीरे धीरे जब हम लोग अच्छा काम करने लगते हैं तो डर भी गायब हो जाता है। थैंक यू सो मच। ये थैंक बहुत यू। ही अच्छी बात कही कि हमें जिंदगी भर स्टूडेंट बन के रहना चाहिए। रियली वंडरफुल। हमारे बीच में है दीपिका तिवारी मैम, अ साइकोलॉजिस्ट एंड ऑथर। काफी बार उनके काउंसलिंग सेशंस हमने देखे हैं। इट मतलब 11 पर्सनालिटीज वी हैव विद अस, 11 पीपल इंस्पायरिंग सो मच। एंड आप आगे आगे देखिए, आप ऐसे स्टोरीज आपको आज ही आपको मिलवाएंगे हम। ठीक है, पहले दीपिका मैम से मिल लेते हैं। दीपिका जी, आज आपको कैसा फील हो रहा है व्हेन ग्लोबल आई हैज चोजन यू टू बी वन ऑफ द इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ 2026? एंड आप जब एक साइकोलॉजिस्ट है तो आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं? एंड व्हाट वुड यू टेल वुमेन टुडे so that they feel empowered? Thank you, Moshmi ji. Thank you.
So how do I feel today? It's a good feeling, great feeling. I wouldn't say like बहुत अच्छा फील कर रही हूँ. एक माध्यम है, एक चैनल है हम, एक चैनल है आप. But I strongly believe that God has been kind. People are good. When I say, I also accept the fact that life isn't bed of roses. It has never been. For me, for anyone, I guess, life has never been bed of roses, and it will never be bed of roses. There will be challenges, there will be struggles, there have been. Yet कोई ना कोई कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार से संबल प्रदान कर ही देता है. आई थिंक सभी इस बात को मानते हैं कि ऐसा कुछ होता है कि आपके आसपास कुछ लोग आ जाते हैं, या कुछ मैसेजेस आपको, या कुछ सपोर्ट किसी ना किसी तरह से यूनिवर्स ऑलमाइटी प्रोवाइड करता है. Journey has been such that I strongly, I often say this to my students in my sessions. I strongly believe, and I often say that जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है, आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है. Now what's the catch here? Whatever is happening, are we wise enough to just look through it? जो हो रहा है उसके beyond देखने की ability, उस घटनाक्रम में मीनिंग और पर्पस को फाइंड करने की एबिलिटी जब हम डेवलप कर लेते हैं, आई थिंक दैट्स द कैच. एंड व्हेन इट कम्स टू द मैसेज आई वुड लाइक टू गिव इज संशय आत्मा विनश्यति विश्वास फलदायक. Doubt just kills everything, and faith, belief, that is everything. So डरो नहीं, विश्वास रखो स्वयं पर, समझो स्वयं को, जानो स्वयं को. Let yourself unfold. Be graceful, be wonderful. Thank you. Thank you so much, Deepika ma'am. Heartiest congratulations. We have with us Minku Butler. Why I have kept, because I came to know about Minku. She is in the US, and I actually salute her. She is here to celebrate womanhood, celebrate the journeys of so many inspiring women here. Early morning, she had to wake up, and the timings actually did not match. I understand a lot, but that's the spirit. That's what a woman is actually. And here, the live, presence of Minku Butler. I came to know her very late after I received all the stories, but I couldn't leave her story because it's actually inspiring, and actually it will be inspiring in the future too if people really know her. People really, the world really, know how she is trying to, create a beautiful world where we find we are growing without emotions. Yes, Minkuji, if you are here, can we see you? Yeah. So, Yes. सबसे पहले तो मैं बताऊं कि I'm just inspired by everyone here. और जब हमने ये सेशन स्टार्ट किया था, उस टाइम पे यहाँ अंधेरा था, एंड जैसे जैसे हम बात करते गए एंड एवरी स्टोरी केप्ट कमिंग अप, यहाँ पे रोशनी अब 7 बज रहे हैं, एंड आई जस्ट फील कि माय फेस वाज इन द डार्क एंड नाउ वी हैव लाइट. एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कुछ 8 सिटीज में ग्रो अप करी. माय फादर वाज विद द इंडियन एयरफोर्स, एंड उसके बाद में फर्स्ट मैरिज में आई हैव लिव्ड इन 8 कंट्रीज. तो जब भी मुझे कहीं पे लिफ्ट में या कहीं पे भी मौका मिलता था, कोई आई एम अ सिखनी, आई ग्रो अप मेजर पार्ट ऑफ माय लाइफ इन चंडीगढ़. तो जब भी मुझे मौका मिलता था, मैं फटाफट दुनिया में कहीं पे भी जल्दी से नमस्ते बुला देती हूँ और जल्दी से सत श्री अकाल कर देती हूँ. एंड दैट इज द वे वी बॉन्ड एंड वी लर्न फ्रॉम एवरीवन. एक कहावत जो मेरे मन में आई, मौसमी जी, व्हेन आई वाज लिसनिंग टू एवरीवन टुडे, एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो कैंडिडेट्स चूज करे हैं फॉर द मैगजीन, दे आर आल्सो हम्बल. इतने ह्यूमिलिटी के साथ. नहीं तो इतना शोशाबाजी होता है दुनिया में, एंड उससे क्या होता है, जो नेचुरल शाइन होती है हमारी, जो इनसाइड आउट होती है, वो थोड़ी डिम हो जाती है. बट जब हम वी शो अप इन अ वेरी ऑथेंटिक फैशन, जो कि हमारी आवाज है और जो हमारे दिल में है, वो ही हम बाहर लेके आते हैं, देन इट्स ब्यूटीफुल. तो एक कहावत आप सबके लिए, दर्द ने ही सिखाया हमें चलना, दर्द ने ही सिखाया हमें चलना, वरना
वरना तो हम हर मोड़ पे रुक जाते. So the point here, what I'm trying to do and say is, कि women empowerment, we are just so capable of being so many things. हम खुद को ही लिमिट करते हैं. एक तो society limits us because from many generations. So in my role, मेरी खुद की life बहुत, I would say, was a dysfunctional life. And in spite of that, I said, नहीं, how can I become a shining example to shine the light on others? वो कहते हैं ना कि एक टॉर्च जब पकड़ते हैं अंधेरे रास्ते में, वो थोड़ी रोशनी खुद पे भी पड़ती है. Right? So we have to move to a very selfless stage. मेरा दुनिया को देखने का नजरिया is humanity. So मेरे बहुत सारे मेंटर रह चुके हैं. And उसमें से I would mention स्वामी दयानंद सरस्वती जी. वो हमेशा यही बोलते थे कि अगर हम एक लड़की को एम्पावर कर देते हैं ना, तो वो पूरे विलेज को जाके एम्पावर करती है. So I think we are very fortunate to be the Shakti of humanity. And हमको, we have to move into this role from being a consumer to a contributor. And now I was holding space for you because मैं motivational speaker हूँ. I'm here in the US. I delivered a 1-hour talk to 100 people on loving kindness, and I was holding space for you. Over to you, Mashmi ji. Uh, what would you tell women today? How can they come out of the doors? As you saw the light in yourself, how can they find their true self? Because that is the main catch. Actually. Every woman today, we know 11 people. All right, and yes, Athila ma'am is still there. We will know her. So the main thing is that everybody at some phase of their life, they feel low, and you all have fought, struggled, and came out of the darkness, could find your own light, enlighten yourself, and now you are enlightening the world. So today, what would you say, women or the girls, growing girls? Yeah. Thank you, Mashmi ji. I have three solid points जो कि I'm very clear about it. एक है कि own your voice and own yourself. मतलब जो अपना truth है, you have to speak your truth without shrinking and dimming your light. We women are very conscious what someone says, how we are judged as a human, right? But if we can own our voice without shrinking, just to make someone comfortable, हम क्या करते हैं? Readjust कर जाते हैं. We readjust who we are, our authentic self, right? But if we can just own our voice, because our own perspective is our power, right? Right? Our own perspective is our power. Second thing is protect your energy. I'm a healer. I'm a motivational speaker. I'm an author. But I have understood that protecting your energy is very, very important. How do you protect your energy? Learn to say no. We women are so accommodating. We just want the whole world to love us. हम सोचते हैं कि we need to be nice first to our parents, then to our husband, then the bachas take over. I mean, my kids live in Australia, and I feel like sometimes हम eggshells पे step कर रहे हैं just to accommodate them. No, I don't think. I think we need to live without apologies. We don't have to be apologetic to the world at all. And choose, अगर आप पूछ रहे हैं ना कि how can we be more empowered, choose your environments very carefully. Choose your environments that will nourish you, right? Nourish and flourish is the two words that we need to look into. तो अगर आपको कुछ toxic लगता है आसपास में, without losing time, we quickly need to move out of that, whether they're people, environment, whoever it is. Third thing, a message for everyone, stand for another woman, जो कि आप बहुत beautifully कर रही हैं. Each one, we must celebrate each other's success. One woman always pulls another woman down. Why? So बहुत जरूरी है. We must support each other's struggles, and create a sisterhood. I use this word sisterhood. मतलब कि we have to come out. तो जब हमको we look at
कंट्रीब्यूटिंग, हमको अपनी कंट्रीब्यूशन फैमिली के लिए नहीं देखनी है, वी हैव टू कंट्रीब्यूट टू द ह्यूमैनिटी। तो बहुत कुछ हो रहा है एज ए एनर्जी। आई नो दैट द एनर्जी इज राइट नाउ वेरी टॉक्सिक, वेरी डार्क, वेरी डेंस। तो हम थोड़ी सी रोशनी लेके आए दुनिया में। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बियॉन्ड आवर सेल्स, बियॉन्ड आवर फैमिली। सर्व, uplift and heal. Healing is not an option, Ashmi ji. We have to heal. हमारा इनर चाइल्ड है, हमारे डार्क डीमंस है, हमारी कंडीशनिंग है। आई थिंक 60% ऑफ हु वी आर इज आवर डीएनए। 25% is conversations we heard when we were growing up, and 25% is what we made ourselves. तो हमको हील होना है और इसी जिंदगी में हील होना है, एंड फिर ही हम आगे बहुत फुर्ती से, चुस्ती से बढ़ सकते हैं। सो दैट्स माय मैसेज। Find a profession that you love, find a purpose that you love, and a passion that you love. उसको ikigai बोलते हैं, and ikigai is how I live. I don't know if that answers your question, Mashmi ji. Thank you so much, Minkuji. And yes, when the world will read your book, they will know more about what you are doing. Today, we are just giving a glimpse, and we have a special moment to launch the book. But before that, Athila Kothalawala ma'am, she is from Sri Lanka, and she has personally inspired me a lot when I was just interacting with her in English. I just, and suddenly she said, मुझे हिंदी में बात करना बहुत पसंद है. And I was like, wow. She's from Sri Lanka and Sri Lankan. She said, when we speak about bridging gaps, Athila ma'am is the visionary, exemplary, figure here. When we speak about bridging gaps between nations, bridging gap between, women of one country and women of the other country through literature, through poetry, or whatever other sources. Athila ma'am, I hope you can hear me. You are here. How are you feeling today? And I couldn't, contact her early, or I couldn't, continue any interactions with her because she is in Sri Lanka and she is keeping very busy. And when I suddenly asked her, ma'am, I want these details, she was like, what? I thought I'm not, deserving. I said, who decides who is deserving? We all women, we deserve a lot. We all are deserving. And when you are bridging gap between two nations, I think we must salute you for building such beautiful relationship between India and Sri Lanka. Yes, ma'am. How are you feeling today? आपको कैसा लग रहा है? And आज जब आप लिटरेचर के थ्रू, हिंदी लैंग्वेज के थ्रू आप दो नेशंस को जोड़ रहे हैं, ऐसा आपने क्यों डिसाइड किया, और आज आप वुमेन को क्या बोलना चाहेंगे? यस, अथिला मैम। हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। और मौसमी जी, सबसे पहले मैं आपको आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और आपने मुझे इस लायक समझा कि आपके इस प्रतिष्ठित पुस्तक में आपने मुझे भी शामिल कर लिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा था कि मैं श्रीलंकन हूँ, यहीं पे पली बड़ी हूँ, और हिंदी तो मेरे लिए विदेशी भाषा है, लेकिन मैंने सीख ली है। सीखने के बाद जब भी मैं किसी भी भारतीय समुदाय के साथ रहती हूँ तो मुझे अक्सर यही फील होता है कि मुझे हिंदी में ही बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो हिंदी में बात करने का मौका बहुत कम मिलता है। तो साथ में मैं आप सभी लोगों को विश्व महिला दिवस पर शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ। और आप सभी को इस नारी शक्ति को उजागर करने के लिए आप सभी लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, और आप सभी लोगों को आप सभी लोग चुने गए हैं, तो उसके लिए आपको आप शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और सचमुच मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे, जैसे मौसमी जी ने कहा, कि मुझे लगा शायद मैंने तो हिंदी सीखी यहाँ पे, तो हाँ, इसके माध्यम से मैंने काफी काम करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा शायद पता नहीं मेरा ये जो भी कहानी है आपने इसके लिए लायक समझेंगी कि नहीं, लेकिन आपने उसके लायक समझा, तो उसके लिए दोबारा आपको धन्यवाद देती हूँ। और
क्योंकि मुझे ये लगता है जब मैं श्रीलंका में हूँ और मुझे विदेशी भाषा सीखने का मौका जब मिला, मैंने हिंदी, जापानी, फ्रेंच कई भाषाएं सीखी। लेकिन आखिरकार जाके, क्योंकि हिंदी भाषा ने मुझे इतना प्रभावित किया कि वो जो बंधन जैसा वो लगा, वो मैं कभी मतलब हिंदी के साथ अपना साथ कभी छोड़ना नहीं चाहती थी, तो हिंदी को मैंने अपनाया हमेशा के लिए। तो तभी से अभी तो हजारों से ज्यादा विद्यार्थियों को मैंने हिंदी सिखाई यहाँ पे। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक बने हुए हैं, स्कूल के टीचर्स बने हुए मेरे विद्यार्थी, और कई हिंदी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं। तो मतलब और साथ में, क्योंकि जब शुरुआत में जैसे मेरे स्कूल के टीचर्स ने भी मुझसे पूछा कि हिंदी क्यों सीख रहे हैं, बॉलीवुड फिल्म्स देखने के लिए, गीत सुनने के लिए, क्या ये दूसरा जापानी सीखो, चाइनी चीनी वो जो भी बाकी लैंग्वेजेस सीखो, हिंदी क्यों? तो मतलब जितना हो सके इन लोगों ने मुझे वापस मतलब भाषा से मुखरने के लिए ही प्रेरित कर रहे थे। लेकिन आज मैं इतना खुश हूँ क्योंकि हिंदी ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचा दिया, मतलब मेरा अस्तित्व तो उसी से है। तो भारत में इतने सारे लोगों को मैं जानती हूँ, वे लोग मुझे मतलब श्रीलंका की प्रतिनिधि के हैसियत से जानते हैं। और जहाँ तक यहाँ पे अभी कभी भी सरकारी तौर पर भी काम होता है, जैसे कोई भी वीआईपी विजिट होता है, जैसे मोदी जी आए थे उनके लिए इंटरप्रेटर बनने का, मतलब इतने सारे मौके मुझे हिंदी की वजह से मिल रहे हैं। और साथ में इससे भी ज्यादा मुझे ये खुशी होती है क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा का इतना मतलब बड़ा समृद्ध धरोहर आपके पास है, तो वो मैं हिंदी में पढ़ के समझ सकती हूँ अच्छे से। और साथ में मुझे ये मौका मिला, हमारे यहाँ है आर्य समाज, आर्यचार्य समाज करके, तो वो सुबह 5 बजे से 1 घंटे का मतलब कोई ना कोई मतलब दूसरों को मोटिवेट करने के लिए वो भाषण होता है। तो उसमें मैं अक्सर कोई ना कोई विषय चुनती हूँ और अक्सर वहीं से भारतीय ज्ञान परंपरा से ही कुछ लेती हूँ, तो मैं उनको इसके बारे में जानकारी देती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उससे बहुत लोग मतलब प्रेरित होते हैं, अपने जीवन को सही बनाते हैं। और साथ साथ अभी ये भी मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि एक समय होता है, अभी 1000 से भी ज्यादा विद्यार्थियों को मैंने सिखाया। अभी मुझे लगता है अभी मुझे मेरा हिंदी सिखाने का समय नहीं है, अभी मुझे वहां से हट के मतलब भावी पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए और उनके लिए बस सहायक बन के अलग खड़े होना है। तो मैं वहीं पे हूँ अब, और मैं उनके लिए लिख रही हूँ, हिंदी के नोट्स लिख रही हूँ, कुछ ना कुछ ये कर रही हूँ। और साथ में इतने लोग अभी हिंदी जानने वाले यहाँ हैं, तो उनको अभी रोजगार से जोड़ने का काम करती हूँ यहाँ पे। मतलब मैं अभी टूरिज्म और हिंदी को जोड़ के जितने लोग भारत से यहाँ आते हैं उनको होम जैसा फीलिंग यहाँ पे हो, तो मैं इतनी बड़ी सेना को तैयार कर रही हूँ यहाँ पे। श्रीलंकन हिंदी में, आपके यहाँ से जो लोग यहाँ आएंगे उनको मतलब श्रीलंका ऐसे लगे कि हम अपने देश में ही घूम रहे हैं। तो बस इसी काम में लगी रहती हूँ, तो सब लोगों को नमस्ते कह के हम उनका आतिथ्य करते हैं यहाँ पे। और बस यही मतलब वहां से लोग यहाँ आते हैं तो ऐसा लगता है अपने लोग आ रहे हैं, और उनको उसी आत्मीयता के साथ यहाँ का वो जगह दिखाने का मौका मिलता है, तो इतना अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और इतने संघर्ष के साथ, क्योंकि शुरुआत में तो हिंदी सीखने के आजकल के जैसे मतलब मीडिया से या कहीं से वो कुछ मिल नहीं रहा था। एक एक किताब के लिए मैं तरसती थी, कहाँ से किताब मिल जाए हिंदी सीखने के लिए। बहुत मुश्किल से पाठ मिलते थे, टीचर्स को ढूंढते हुए कई घंटे जाके बहुत संघर्ष के साथ हिंदी सीखी। और लेकिन आज मुझे मतलब बहुत तृप्ति मिलती है कि हाँ, वो जो भी संघर्ष था तो आज वो पूरा हो गया है।
और साथ में इतना मतलब मैं ये भी याद करना चाहती हूँ मेरे फैमिली को, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड है कहते हैं कि हर सार्थक पुरुष के साथ एक महिला रहती है, लेकिन मैं ये भी बताना चाहती हूँ शायद हर नहीं कह सकते, लेकिन सार्थक महिला के साथ पुरुष का होना भी बहुत बड़ा भाग्य होता है। तो मेरे पति ऐसे हैं, तो कई बार ऐसा होता है मुझे 10 दिन के लिए 2 हफ्ते के लिए मैं बाहर जाती हूँ बच्चों को उनके साथ छोड़ के, और मैं सीखती रहती हूँ। अभी कोई ना कोई कार्यशाला होती है और आगे भी और सीखने का मौके मिलते हैं, मैं छूटने नहीं देती, जाके सीखती हूँ। तो मैं आजकल के नई पीढ़ी को भी ये बताना चाहती हूँ, किसी ना किसी एक एक नहीं, 1 2 3 जो भी है, किसी से हमें प्रवीणता प्राप्त करना है, तो उसमें इतना माहिर होना है कि वही एक्सपर्ट जो कहते हैं, एक्सपर्ट रहना है, तो कभी हार नहीं होती, क्योंकि आपकी जरूरत फिर कहीं ना कहीं निकल के आता ही है। तो इसलिए हमें प्रवीणता हासिल करना है किसी चीज में, और हमेशा सीखते रहना चाहिए। कभी भी सीखने की प्रक्रिया को छोड़ना नहीं चाहिए। मरते दम तक हमें सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, तो वो भी है। और साथ में जब मौका मिलता है जो आगे भविष्य की पीढ़ी को आगे बढ़ा के कहीं हटके उनके लिए सहायक बन के खड़े रहने की शक्ति भी हमें रखनी चाहिए। तो बस यही मुझे लगता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साथ में शुभकामनाएं। विशेष रूप से ग्लोबल आई को और गिफिन पब्लिकेशन को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मौसमी जी को, आपने इतनी अच्छे से मेरी अभी कहानी को आगे बढ़ाया। बहुत धन्यवाद आपको जी। थैंक यू सो मच मैम, ब्यूटीफुल। सब में एक ही चीज कॉमन है, मुझे इतना अच्छा लगा कि यहाँ पे आज जो भी इंस्पायरिंग वुमेन है, मेनी आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड, काफी उम्र हो गए, हम उनसे सीख रहे हैं, बच्चों जैसे हैं, बट सब में एक ही चीज कॉमन है। एवरीवन सेज वी शुड स्टे एज स्टूडेंट फॉर एवर, वी शुड स्टे एज लर्नर्स फॉर एवर इन आवर लाइव्स। ये इतनी अच्छी बात है। आई एक्चुअली लव दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज वी आर लर्निंग थ्रू आवर लाइव्स. Now it's time to launch the book. Can you see the screen? Can I hear yes from everyone? Yes. 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 So Yes. now it's time. We have arrived at the most special moment of this evening, the unveiling of celebrating inspiring women shaping today and tomorrow, edition 2026 by the Global Eye in collaboration with the Griffin Publication. And actually, I would like to pause for a moment and reflect on what this book truly presents. This book is not just a collection of stories. It is, as I said in the beginning, it is a celebration of courage, perseverance, and purpose. Each woman featured in this book carries a journey filled with challenges, determination, dreams, and achievements. These are stories of women who are not only shaping their own destinies, but also transforming the lives of others around them. You are educators, nurturing the future. You are entrepreneurs, building opportunities. You are leaders, guiding change. And above all, you are women who continue to uplift other women and strengthen our society. And today we extend our heartfelt gratitude to every inspiring woman who trusted us with her story. हम आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी कहानियां, अपनी जर्नीज हमारे साथ शेयर की। आपकी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है, ये एक प्रेरणा है, हिम्मत है, और ये एक नए कल की रोशनी है। आई होप आपको दिख रहा है आपके नेम्स बुक कवर के पीछे, एंड अंदर आपके बहुत सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स आपके स्टोरीज के साथ, आपके जर्नी के साथ है। एंड ये बुक
दुनिया में हर कोने में, हर देश में अवेलेबल होगा, एज पेपरबैक, एज किंडल, एज ई बुक, आज अवेलेबल होगा। एंड 100 साल बाद भी कोई अगर जानना चाहे, आप हमेशा, यू आर इमोर्टलाइज्ड थ्रू दिस बुक एक्चुअली। एंड आशा करती हूँ कि आपकी जो सेवाएं है, जो आपने अपने जीवन को समर्पण किया है सोसाइटी के लिए, और जो आपका ये योगदान है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वो आगे भी इस तरह लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। आई होप यू विल कीप एम्पावरिंग वुमेन, यू विल कीप एनलाइटनिंग वुमेन। एंड जैसे आप सभी ने कहा, वुमेन अपलिफ्टिंग वुमेन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस दुनिया में यही चीज की कमी है, और आप लोग आज यहाँ हो because you have a story that can inspire many women. You have a story that is uplifting the society. You have a story that is not only inspiring me, but it will inspire generations to come. Because when we preserve your stories, your journeys in one book, this is not just for a day. This is for lifelong. A book never dies. कोई मैगजीन में लिख लेगा, कल वो मैगजीन गायब हो जाएगी, लेकिन एक किताब जब लाइब्रेरी में पड़ी रहेगी, ये नेशनल लाइब्रेरी में भी जाएगी ये किताब. So a book when it will be in the national library, a book when it will be in the stores, a book हर कोने में, दुनिया के हर कोने में रहेगी. जो कोई भी ये किताब उठाएंगे, they will open and they will read your journey, they will read your name. And पता नहीं आपने आपके स्टोरी के थ्रू कितने वुमेन को, कितने लोगों को आज इंस्पायर किया है. और जब ये किताब लोगों के हाथों में पहुंचेंगे, शायद हमें भी नहीं पता कितने वुमेन के अंदर जो चीजों की कमियां थी, या जो डर है, जैसे लेखा बोरा मैम ने भी कहा कि ये हेजिटेशन जो है कि खुद को कैसे बाहर निकालें, शायद आपकी स्टोरीज पढ़ के women will learn, girls will learn to come out and know themselves, know to love themselves. And we truly hope that your journeys continue to inspire many, many, many more women to dream bigger, stand stronger, and rise higher. We also look forward to staying connected with all of you. It is not that we are connected today through this book launch or only through this book, because I wish, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को इनवाइट करती रहूं, क्योंकि हमारे चैनल ऐसे बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहते हैं, शोज करते रहते हैं. So I wish that we keep inviting you again to such, meaningful platforms where together we can spread awareness, support women, and continue conversations that can strengthen women empowerment. जैसे मैंने पहले ही कहा था, women empowerment सिर्फ एक शब्द नहीं. I want to make women empowerment really happen in our country and in the world. So at this moment, I would also like to express my sincere gratitude to Global Eye and the entire team of Global Eye, right from the project head to the communication head and the Griffin publication, right from the designer to the editor. हमने, आप सबको पता है कि लास्ट मोमेंट स्टोरीज कब आई है, और आज हम बुक लॉन्च कर रहे हैं, मतलब बुक अंडर प्रिंट है. So हमारे पास सिर्फ 2 या 3 दिन थे, and today is the 3rd day. I haven't slept. मेरी टीम जो है सोए नहीं है, रात दिन इस किताब पे लगी हुई है. डिजाइनर डिजाइन कर रहा है, एडिटर एडिट कर रहा है, लिखने वाले लिख रहे हैं, कम्युनिकेशन हेड कम्युनिकेशन में लगे हुए हैं. So I thank to my entire team of the Global Eye for their dedication, passion, and for bringing this project together so beautifully and so swiftly. And now, before we unveil the book, we have already unveiled. कुछ मेरी हिंदी कमजोर है, but I'm getting inspired by you all people. Minku ma'am sitting in the US speaking such beautiful. Athila ma'am श्रीलंका में बैठ के इतनी अच्छी हिंदी बोल रही है. And actually you have inspired me to learn a lot. नारी है साहस, नारी है सम्मान, उससे ही रोशन होता हर अरमान. जब वो उठती है अपने विश्वास के साथ, तो बदल जाता है समाज और समय का इतिहास. And one more for all the incredible women here today, जहां नारी का होता है सम्मान, वही बसता है उज्जवल भविष्य और महान समाज का मान. So now, with immense pride and joy, all right, again, heartiest congratulations. I would love to congratulate you again for this wonderful, inspiring journeys you have lived, you are living. And कहाँ से आपने, विमल मैम कहाँ से जुड़ी,
है ना, सब अलग अलग जुड़े। मंजुला मैम कहाँ से सवेरे से बिजी है, दीपिका मैम कहाँ से जुड़ी है, रूही मैम एमपी में बैठी हुई है, कहाँ कहाँ से दुनिया भर से, लेखा मैम। बट दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एज women. We are standing together today. We are uplifting each other. And yes, celebrating you, celebrating your journey as inspiring women. And thank you. Thank you so much, dear women, for leading us, for inspiring us. And thank you so much that today we are able to share your journey to the world. Heartiest congratulations once again.